polygons. So a polygon is a closed shape which is made up of straight lines only. So students, in this video you are going to learn about polygons, few basic concepts and different type of polygons. Now here you can see in the figures also, over here we have polygons drawn over here, made up of straight lines only. You see this is a straight line, 2 3 4 5. There are 5 straight lines over here, and also it's a closed figure. What is it? It's a closed shape, meaning all the ends are connected. There is no gap over here. If you check in all of them, it's a four-sided polygon. There is no gap. It's made up of straight lines. So we say that a polygon is a closed figure made up of straight lines, and those straight lines should be three or more, because if I take only two straight lines, let's say, I need some lines to join it. Yes, so two will not make a polygon. You need to make one more line here, okay, and one more line here to make it a polygon. Got it? So minimum number of sides required to make a polygon is 3. There should be 3 straight lines to make a polygon. Here you see it is not a polygon in this figure because it's a curved line. It is what? It's a curved line. So curved shapes will not come under polygon. Polygon also always have straight line. Here you see there is a gap, so it is not a polygon. Clear, students? Now polygon can be of two types, regular and irregular, based on the length of their sides. Okay, regular means equiangular, equilateral, both. Equiangular means all angles same measure. The value of all angles should be same. Equilateral means all side lengths should be same. You have done equilateral triangle also, yeah. So equiangular means all angles same. Equilateral means all sides same. If you see over here, you have a triangle. A triangle is also polygon because it is made up of three sides. Okay, यहाँ पे आप देखो तीनों sides equal हैं. This symbol shows that all these sides are equal. और यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल को डबल मार्क करके दिया हुआ है, मीन्स ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो इक्वी एंगुलर भी हो गया, इक्वी लैटरल भी हो गया. यहाँ पे ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सो इट्स अ रेगुलर पॉलीगन. इधर आप देखोगे ये ट्राइंगल स्केलियन ट्राइंगल है, मतलब तीनों लेंथ डिफरेंट है. करेक्ट. यहाँ पे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रेगुलर नहीं हुआ. गॉट इट? इट्स एन इरेगुलर पॉलीगन. वी टर्म एंगल्स इक्वल है बट साइड्स आर नॉट इक्वल. सो यहाँ पे बोथ चीज होने चाहिए सेम टू मेक इट अ रेगुलर पॉलीगन. करेक्ट. ये फिगर और दिख रहा है. दिस इज अ पेंटागन, 5 साइड्स हैं. सो based on the number of sides we decide what type of polygon it is. Okay, number of sides very important होते हैं. number of sides को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा n के साथ, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और नंबर ऑफ साइड्स आपको बताता है कि किस टाइप का पॉलीगन है. ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 and then we'll go in a table and see, check what all the different type of polygons are there. अब यहाँ देखो नंबर ऑफ साइड्स 5 हो गया. या इट्स अ पेंटागन. 1 2 3 4 5, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल. एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल्स हैं. करेक्ट. 3 साइड्स 3 एंगल्स. यस, 3 साइड्स 3 एंगल्स. 4 साइड्स तो एंगल भी कितने हैं? 4. 1 2 3 4. यहाँ पे 5 साइड्स है, तो यू कैन सी हाउ मेनी एंगल्स आर देयर. 1 2 3 4 5, ऑल आर इक्वल. देखो सब पे ये सेम सिंबल बना हुआ है, तो सारे के वैल्यू सेम है. यहाँ पे कितनी साइड्स है? देयर आर 6 साइड्स, तो एंगल भी कितने हैं? 6 एंगल्स. ओके, सो इन अ पॉलीगन the number of angles are same as number of sides. clear? अभी आते हैं, ये polygons regular नहीं है. ये भी pentagon है but it is not a regular pentagon. This is also a hexagon but it is not a regular hexagon because the length of the sides are not same. All angles are also not same. Okay, this is what regular and irregular polygon is there, students. Now let's move to convex and concave polygons. Okay, अभी ये जो polygons आपने देखे जितने भी थे, ये सारे के सारे कौन से टाइप के पॉलीगन्स है? दे आर ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन. दे आर ऑल कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, नाउ लेट अस सी, बिकॉज इनमें कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं है. सारे के सारे एंगल्स 180 से छोटे हैं, जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना. और ये जो अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज इंटीरियर एंगल्स. ओके, जितने भी एंगल्स हैं दे आर ऑल लेस देन 180 डिग्री. फाइन, ऑल एंगल्स इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, बट इन केस ऑफ अ कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन में क्या होता है? कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा हो जाता है. एनी वन. ओके, लेट्स सी दिस फिगर.
यहाँ पे ये सारे के एंगल्स अगर आप देखो, ऑल दीज एंगल्स दे आर लेस देन 180, बट ये वाला जो एंगल है, इफ यू मेजर इट, इट्स अ रिफ्लेक्स एंगल, करेक्ट, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये कौन सा पॉलीगन बन गया? कॉनकेव पॉलीगन। दूसरा चीज, जब हम इनमें डायगनल्स बनाते हैं, डायगनल्स, यू नो व्हाट आर डायगनल्स? आई विल टेक अ स्क्वायर ओनली, rough figure I'm drawing, students, okay? अभी इसके diagonals, you know how do I make diagonals? I take the opposite vertices a b c d, opposite क्या a and c, जब आप opposite vertices को join करते हैं straight line से, that becomes a diagonal in a polygon. So यहाँ पे ये diagonal बन गई, ये दोनों diagonal अंदर आ रहे हैं, फिगर के अंदर है, within the figure, they are not outside the figure. बट यहाँ पे जब मैं diagonal बनाने की कोशिश करूंगी in this figure, let me just draw it once and show you, take different color here. यहाँ पे अगर हम बनाते हैं ऑपोजिट वर्टिसेस, एक ये बनेगा ऑपोजिट टू ऑपोजिट, दूसरा एक ये जाएगा, करेक्ट, ये भी रहेगा ऑपोजिट वर्टेक्स, ये भी रहेगा ऑपोजिट वर्टेक्स। और जब इन दोनों को हम लेते हैं तो ये बाहर आ गया, दिस डायगोनल इज आउटसाइड, दिस डायगोनल इज आउटसाइड, ओके। सो इसलिए ये कॉनकेव बन गया इसका, क्योंकि फिगर का पार्ट जो है बाहर आ गया, गॉट इट, बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज रिफ्लेक्स ग्रेटर देन 180, क्लियर? Okay, students, now let's move on to another concept called as interior and exterior angle in a polygon. अभी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल आप लोगों ने 7th ग्रेड में पढ़ा होगा ट्राइंगल के अंदर, यस। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स है, 1 2, यहाँ पे सबकी लेंथ डिफरेंट है, सो आई मेजर लेबल मार्क इट लाइक दैट, सॉरी। सो यहाँ पे 1 2 3, 3 इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं आपको, देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स। अभी ये क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करें बाय चांस, लेट्स से आपको अगर ये थर्ड एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे? इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस थर्ड एंगल, you know angle sum property, 30 plus 90 plus this third angle, let's say a, angle sum property of a triangle is 180 degree, if you all remember, sum of all angles of a triangle is 180 interior, so a का वैल्यू क्या हो गया? 180, sorry, minus 90 plus 30 is 120, so 60 degree आ गया ये, फाइन, दिस एंगल केम आउट टू बी 60 डिग्री। नाउ ये तो थे इंटीरियर एंगल्स, अभी बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। ये x y z, दीज आर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ये x कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको दिख रहा है 90 प्लस x, हमेशा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या बनाता है? एक लीनियर पेयर बनाता है, ओके। लीनियर पेयर मीनिंग उन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्रीज, क्लियर? सो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180, सो 90 प्लस x 180, so यहाँ से x मेरा क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90, 90 ही आ गया, करेक्ट। इधर से z कैसे आएगा? 180 माइनस 30, हाउ मच इज दैट? 150, ये 150 आया। यहाँ से y कैसे आएगा? ये 60 था तो 120 माइनस 60 इज व्हाट बेटा? सॉरी, 180 minus 60 is what? 120 degree. So y मेरा आ गया 120 degree. Okay. Now when I add these 150, 90 and 120, क्या आएगा टोटल मेरा? 0, 2 and 9 11, 11 5 16 1 360 degrees. x plus y plus z क्या आया मेरे पास? 360 डिग्री, ओके। अभी इस फिगर में आते हैं, ये क्या है? यहाँ पे 4 साइड्स है, ओके, 4 साइड्स है, लेकिन आप देखो इनमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे? एक 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड्स, 4 साइड्स हैं इसकी, तो इसका नाम हमने दे दिया है क्वाड्रिलेटरल, ओके। अभी इस क्वाड्रिलेटरल में भी 4 इंटीरियर एंगल्स है, if you check there are 4 into 1 2 3 4, 4 इंटीरियर एंगल्स। आप फोर्थ वाला निकाल सकते हो आराम से, कैसे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्री। 360 में से ये सारे का सम माइनस करेंगे, सो 360 माइनस 60 प्लस 80 प्लस 120 क्या आएगा? 360 माइनस 260, सो इट कम्स आउट टू बी 100 डिग्रीज, ये 100 आ गया, ओके। अब फाइंड आउट करते हैं एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे भी 80 और y, सो y क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80, 180 माइनस 80 सॉरी इज 100, ओके। 180 minus 60 is 120, 180 minus 100 is 80, and 180 minus 20 is 60. Got it? Linear pairs I'm calculating. Now सबका वैल्यू क्या हो गया? x plus y plus z.
plus w is how much? 60 plus 100 plus 120 plus 80 प्लस करते हैं सबको, क्या आएगा ये? 200, 300 एंड 360। अब भी यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है? इसके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 आ रहा है, इसके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 आ रहा है। ओके, सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, I will write it down here, students, that sum of all exterior angles of any polygon, आपको लेना है क्या? हमेशा 360 डिग्री। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू फॉर्मूलाज दैट आई एम गोइंग टू यूज विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ओके, पहला फॉर्मूला बताया मैंने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री। एक इसको भी लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये एक लीनियर पेयर बनाता है। गॉट इट? थर्ड फॉर्मूला, हमारे पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स तो आ गया। गॉट इट? ये सारे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है, इंटीरियर एंगल चेंज हो रहा है ना। आप यहाँ पे देखो, ये 180 था ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में 360 हो गया, पेंटागन में जाओगे तो इट विल चेंज। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आल्सो, and that is based on number of sides, interior angles of a polygon. Okay, it is given by what formula? N minus 2 multiplied by 180 degree. I'll use this in the next table. ये हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी एक और चीज बताते हैं। यहाँ अगर मैं देखूं, हमने वापस इधर आते हैं, ट्राइंगल के अंदर क्या मैं डायगोनल बना सकती हूँ? कैन आई मेक डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल? इफ आई चेक ओवर हियर, कैन आई मेक डायगोनल्स? डायगोनल्स होते हैं ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके। क्या मैं बना सकती हूँ ट्राइंगल के अंदर डायगोनल? नो, बिकॉज ऑपोजिट वर्टिसेस तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, सो देयर इज नो नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें जीरो है। यहाँ पे देखते हैं, स्क्वायर के अंदर मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, मैंने बनाए भी थे अभी थोड़ी देर पहले। सो देयर आर 2 डायगोनल्स हियर, करेक्ट। पेंटागन में, let's try if we can draw diagonals in a pentagon, and you see the number changes based on the number of sides it is changing। या ये पेंटागन में अगर आप देखो, ये इसको ऐसे ज्वाइन करो, ऑपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, एक ऑपोजिट ये भी हो गया, ये भी इन दोनों से ऑपोजिट आया, फाइन। ओके, ये भी जाएगा। ओके, कोई और दिख रहा है? आई थिंक नो, फाइन। दिस वे वी ड्रॉ द डायगोनल। हेक्सागन में जाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करा, इससे इसको करा, इससे इसको करा, एंड दिस विल गो विद, इससे 3 और ये 4 भी आ गया। गॉट इट? बहुत सारे बन जाएंगे, यहाँ से ये आएगा, and it will go with this also। okay, with this you have this rest all know, with this you can do this। okay, यहाँ से ये बन गए, fine। you see the number of diagonals you have drawn। okay, now नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे चेंज हो रहे हैं? नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जा रही है तो डायगोनल चेंज हो रहे हैं। so, उसका भी एक फॉर्मूला है, लेट मी राइट, नंबर ऑफ डायगोनल्स of a polygon is given by, the formula is n into n minus 3 by 2। okay, okay students, ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है, I'll write it down, but that we will use when we will do questions related to that। तो फॉर्मूला is number of sides। कैसे निकालते हो? अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता है, yes, is equals to sum of all exterior angles divided by one exterior angle, or sum of all interior angles divided by one interior angle। okay, you can use that। अब एक्सटीरियर आपको पता होता है 360 है, तो एक एक्सटीरियर ऐसे हो जाता है, फाइन। और एक्सटीरियर एंगल एक निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला? नॉट एंगल्स, इट इज ओनली वन सिंगल एंगल। और एक्सटीरियर एंगल सेम वे यू कैन से each exterior angle is equals to 360 by n, ये क्योंकि ये n है, fine, it's coming from here only। okay students, yeah, now formula I told you। now let's move to different type of polygons based on their sides। so, a polygon with 3 sides, n3 है, triangle बोलते हैं उसको। okay, और उसके diagonal 0 है, because if you put in the formula, मैं यहाँ formula लिख देती हूँ, n minus 3 divide by 2, और इधर formula था n minus 2 into
180 degrees. Okay, sum of exterior angles सब में 360 degree रहेगा. Okay, so let's calculate it. 3 minus 2 into 180, तो 1 into 180, it is how much? 180 degree. यहाँ पे 3 minus 3 करोगे तो 0 हो जाएगा, no need to do. Quadrilateral, 4 sides, कोई polygon को हम बोलते हैं quadrilateral. 4 minus 2 into 180. So 2 into 180 is how much? 360 degree. Diagonals निकाल लेते हैं. So 4 into 4 minus 3 divide by 2. So which is 4 by 2, 2 diagonals. This is again 360 degrees. Pentagon, 5 sides. So angle का formula क्या था? n minus 2. So 5 minus 2 into 180 degrees, which is 3 into 180. So how much is that? 540 degrees. Okay. Number of diagonals भी निकालते हैं. 5 minus 3 divide by 2. 5 into 2 by 2, which is 5 only. Sum of exterior remains the same. Hexagon is a polygon with 6 sides. So 6 minus 2 into 180 degree, which is 4 into 180, 720 degrees. और यहाँ पे 6 minus 3 divided by 2, so 3 3s are 9. Okay, so यहाँ पे number of diagonals 9 आया and exterior angles again 360 degree. 7 sides के polygon को क्या बोलते हैं हम? That's called as heptagon or septagon also. यहाँ पे कुछ लोग septagon बोलते हैं, heptagon बोलते हैं. Okay, it's your wish what you want to say it like that. So interior angles 7 minus 2 into 180 degrees. So it's 5 into 180. क्या हो जाएगा angle? 0 0 4 900 degrees. Okay, sum of all interior angles. Okay, now diagonals 7 minus 3 by 2, which is 7 into 4 by 2. कैंसिल करेंगे, 7 2s are 14 diagonals आए. एक्सटीरियर सब में देखो सेम ही जा रहा है 360 डिग्री. ऑक्टागन 8 sides are there, so 8 minus 2 into 180 degree, so 6 into 180, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. 6 8s are 48, 4 1080 degrees, and diagonals हो जाएंगे 8 minus 3 by 2, so it's 4 into 5, which is 20 diagonals here, and exterior again 360 degree. Let's move to nonagon. Nonagon for 9 sides. Okay, so यहाँ पे 9 minus 2 into 180 degree, so 7 into 180, value calculate करेंगे student. 7 zeros are 0, 7 8s are 56, 5 carry over, 7 5 1 2 6 0. Okay, diagonals लेते हैं. 9 into 9 minus 3 by 2, so which is 9 into 6 by 2, cancel 3, so 27 diagonals here. Exterior angles का sum फिर से 360 degree है. Decagon is for 10 sides. We are going to do till decagon only. Okay, more sides you can calculate on your own. Fine. Now 10 minus 2 into 180 degrees, which is 8 into 180 degrees, which is 0 4 6 carry over 1 4 4 0 degree. Okay, now यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? अभी डायगोनल्स बच गया है. सो 10 minus 3 by 2, कैंसिल करेंगे 5 into 7, there are 35 diagonals. Okay, write it a little neater. It's 35, and exterior angle का sum फिर से 360 degree. So I hope we have done till 10 sides. Okay, अभी हमने sum of all इंटीरियर निकाला है, और ये सारे अगर आप देखो ये सब रेगुलर पॉलीगन है, ये सारे रेगुलर पॉलीगन है. तो एक एंगल, रेगुलर मींस ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. यस, तो इफ यू नीड टू गेट ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ओके, तो उसके लिए क्या करो, आपको सम पता है सबका, सो सम को डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दो. ओके, फाइन. सम ऑफ ऑल इंटीरियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ sides. Sum of all interior divide by number of sides. Got it? You will get the each interior angle also. Okay, let me do it for decagon. इसमें sum of all interior angles 1140 degree. Sides कितनी है? 10 sides है, कैंसिल करोगे, so each interior angle आ जाएगा 144. Okay, और each exterior के लिए 360 by 10 करोगे तो वो 36 डिग्री आया. Okay, अभी आप चेक करो, 144 प्लस 36 क्या आ रहा है? 081, 180 डिग्री आया, बिकॉज एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर. फाइन. सो आई होप दीज फॉर्मूलाज आर क्लियर and the concept of this topic is clear to you. Okay students,
Next video में what we will do, we will solve some questions, but please revise the formulas before moving on to the question, and the concept should be clear to you all. Fine. And if you have a doubt, just let me know. I'm there to help you all.